Today we will start with the part energy flow. So as you all know, which is the main source of energy? Sun is the main source of energy. The only source of energy for all the ecosystem is what? The sun. But except for which place? Except for the deep hydrothermal ecosystem, where there is hydrothermal system, hydrothermal vents under the ocean. In those places, sun is not the source of energy. But other places, other ecosystems have the source as the sun. The ultimate source is the sun. So, total incident solar energy for the whole day, out of the total incident solar energy, less than 50% is used, that is photosynthetically active radiation. That is, less than 50% is photosynthetically active radiation. And this photosynthetically active radiation, out of this total photosynthetically active radiation, plants use only 2 to 10% of photosynthetically active radiation. Okay. So plants as well as the photosynthetic and chemosynthetic bacteria, they will fix the sun's energy to make the food from simple organic compounds or molecules, as you can say. So simple inorganic. Today's topic is energy flow. So in this we will discuss about how the energy flows from one level to another. So as you all know that sun is the only source of energy for all the ecosystem on the earth, except what? Except the hydrothermal ecosystems. That is for the deep sea, where the sunlight does not reach properly. It is the darkest region, so that region only the sun is not the source of energy. But of all the solar energy that is radiated every day, 50% or less than 50% is photosynthetically active radiation. So out of this photosynthetically active radiation, only 2 to 10% are used by the plants for the photosynthesis. So plants as well as photosynthetic and chemosynthetic bacteria, they will fix what? Sun's energy to make the food from the simple inorganic molecules. तो photosynthesis में क्या चाहिए? photosynthetically active radiation चाहिए है. तो इसमें क्या होता है? इसमें food produce होता है ना. तो chemosynthetic bacteria which are autotrophs and photosynthetic the plants also they will use the sun's energy for preparing their food. Thus all organisms are dependent on what? Dependent on the producers, directly or indirectly, for their food. Because if there will be no producers, the ecosystem will not maintain their balance. The trophic levels will not continue. So what happens? These producers जो खाना बनाते हैं, the plants, green plants, they depend on the sun's source of light, and they produce the energy, and all the organisms are dependent on the producer. So sun's radiant energy is the ultimate source of energy. Next we come to the energy flow, that is how the energy, कैसे energy एक level से दूसरा level तक जाता है. The flow of energy is what? Unidirectional. एक ही direction में energy flow होता है. जैसे sun से देखो producer से फिर consumer तक, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में एक ही साइड से जा रहा है. सन से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, एंड मेंटेन्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल एंड ऑल्सो इट फ्लोज फ्रॉम, यू कैन सी सन देन प्रोड्यूसर्स देन कंज्यूमर. सो इट फॉलोज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. देन अगेन इट नीड्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स. And the ecosystem requires to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness. ठीक है, दैट मीन्स क्या? एनर्जी लगातार चाहिए होगा, मॉलिक्यूल सिंथेसाइज के लिए लगातार एनर्जी चाहिए होगा. एंड इकोसिस्टम विल ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस, क्योंकि यूनिवर्सली क्या होता है? बैलेंस को बिगड़ना एक ज़रूरी प्रक्रिया होता है, तो बार बार डिसऑर्डर हो जाता है. तो इसको मेंटेन करने के लिए इकोसिस्टम अपना काम चालू रखता है टू काउंटरैक्ट दिस टेंडेंसी टू बिकम डिसऑर्डरली. सो दिस इज इन कोरिलेशन विद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, सो एज यू कैन सी दैट the laws of thermodynamics are also related to the energy flow.
कुछ भी एनर्जी जो ऑर्गेनिजम्स में है वो हमेशा के लिए नहीं रह जाएगा, पास ऑन हो जाएगा प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर, कंज्यूमर्स टर्शियरी कंज्यूमर तक। जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। एनर्जी अपना बॉडी में रख के कोई उम्र भर जी नहीं सकता है, सो ट्रैप करके नहीं रह सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, एनर्जी इज ऑलवेज पास्ड फ्रॉम वन टू द अदर। passage of energy is called what? Energy flow, which is always what? यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उल्टा साइड में नहीं। सन, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ऐसा डायरेक्शन में चलता जाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या क्या, जो खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। जो बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। सो देयर आर थ्री टाइप्स, प्राइमरी विच फीड ऑन प्लांट, सेकेंडरी विच फीड ऑन अदर एनिमल्स एंड टर्शियरी विच फीड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो देखा जा रहा है कि कितना टाइप का कंज्यूमर्स है, तीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स देन अप टू द कंज्यूमर्स। एक के बाद एक जो ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ चेन, ठीक है। दिस फीडिंग चेन इज कॉल्ड व्हाट? फूड चेन। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है एक ग्रीन प्लांट से लेके पूरा कंज्यूमर तक, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर तक। ऑर्गेनिजम्स आर ईटन बाय अदर्स, ऐसा एनर्जी का फ्लो जिसको क्या बोलते हैं? फूड चेन। तो उनका दो टाइप होता है फूड चेन का, एक ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा है डेट्रिटस फूड चेन। अब ग्रेजिंग फूड चेन में क्या देखा जाएगा कि इट विल बिगिन विद द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर से स्टार्ट चालू होगा, वो सोलर एनर्जी लेगा और अपना जो खाना बनाएगा बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर हार्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन टर्शियरी कंज्यूमर्स तक आगे बढ़ेगा, जैसे कि ये चेन ग्रास, गोट, मैन। दिस इज अ ग्रेजिंग फूड चेन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब फिर दूसरा है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन में क्या होगा? डेड ऑर्गेनिक मैटर इज द मेन थिंग। इट बिगिन्स विद व्हाट? डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो मरे हुए जो चीज़ें हैं, जो प्लांट्स का रिमेनिंग है, एनिमल्स का रिमेनिंग है, दिस आर डेट्रिटस फूड चेन, जस्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन है? बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है। तो bacteria and fungi are decomposers, so it starts with dead organic matter and is made up of what? Decomposers, which are what? The heterotrophic organisms which cannot prepare their own food. तो कहाँ से इनको एनर्जी मिलेगा? By degrading the dead organic matter। इसको सड़ा के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स अपना पूरा कर सकता है। तो कैसे? जैसे डिकम्पोजर्स है बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है। इनके बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो क्या करेगा? ये डेड डिकम्पोजिंग मैटर को, मतलब जो सड़ने वाला है, वैसे मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स को ब्रेक डाउन करेगा और डिकम्पोज करेगा इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो बॉडी में क्या है डिकम्पोजर्स का? डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, दैट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो दो टाइप का फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। नेक्स्ट वी कम टू द फूड वे, विच इज व्हेन मेनी फूड चेन्स आर कनेक्टेड टुगेदर, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? ए फूड वे। बहुत सारे चेन्स एक साथ मिलके क्या बन जाते हैं? फूड वेब। मकड़ी का जाला जैसे होता है, इसे वेब बोलते हैं। तो फूड चेन का कनेक्शन का नाम क्या है? फूड वेब। नेक्स्ट इज ट्रॉफिक लेवल्स। देखो इकोसिस्टम में बहुत सारे जगह है जो एक ऑर्गेनिज्म एक जगह को चुन के रहेगा। द पर्टिकुलर प्लेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिजम्स को कुछ ना कुछ जगह मिला है, तो एक जगह का नाम क्या है? ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। मतलब ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग। सभी के लिए कुछ ना कुछ जगह है, और किसके हिसाब से? हाउ दे फीड, फूड के हिसाब से सभी ऑर्गेनिजम्स का एक एक जगह मिला है, ठीक है। तो एक जगह का नाम क्या है? ट्रॉफिक लेवल।
स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन, फूड चेन में एक जगह मिला है, वो जगह का नाम क्या है? ट्रॉफिक लेवल. ओके, ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव गॉट अ स्पेसिफिक स्पेस इन द फूड चेन विच इज कॉल्ड व्हाट? ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, तो उसी के हिसाब से अगर ट्रॉफिक लेवल को हम लोग देखेंगे तो प्रोड्यूसर्स आर द वन विच ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल नीचे से चालू होगा और ऊपर तक जाएगा टू द टर्शियरी कंज्यूमर. सो सबसे नीचे कौन? फर्स्ट, दैट इज द प्रोड्यूसर्स. देन सेकेंड इज द प्राइमरी कंज्यूमर्स. थर्ड इज द टर्शियरी कंज्यूमर. सेकेंड, सो सबसे नीचे कौन? प्रोड्यूसर्स विच इज द occupies the first trophic level. Second trophic level is primary consumers. Third trophic level is secondary consumer and fourth trophic level is tertiary consumers. Okay, so ये क्या है, मतलब क्या बोल रहे हैं? फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ जगह मिला है. एक जगह का नाम क्या है? ट्रॉफिक लेवल. उसमें से पहला जगह किसको मिला है? प्रोड्यूसर्स को. तो हमेशा ट्रॉफिक लेवल जो है प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक जाएंगे तो फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ऊपर से नीचे अरेंजमेंट नहीं है. ये ऐसा होता है ना, ये नीचे होता है, बॉटम में क्या होता है? प्रोड्यूसर्स, उसके बाद उससे ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, उससे ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, उससे ऊपर टर्शियरी कंज्यूमर. सबसे ऊपर कौन? टर्शियरी कंज्यूमर. अभी आएंगे स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में जानने के लिए. स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल एट अ स्पेसिफिक टाइम. ठीक है, कितना है लिविंग मटेरियल ट्रॉफिक लेवल, हर एक ट्रॉफिक लेवल में, मतलब कितना है वो जानने के लिए जो चाहिए होगा, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप. द डेफिनेशन इज द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल एट अ स्पेसिफिक टाइम और नंबर इन यूनिट एरिया. तो मास है या नंबर है, यूनिट एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में कितना है, कितना, हाँ, मास कितना है, वो क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप. नंबर भी हो सकता है ये. ठीक है, और जैसे इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रेश और ड्राई वेट. ठीक है, तो स्टैंडिंग क्रॉप जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें से हमको पता चलेगा कि ज़्यादा कौन सा प्रोड्यूसर ज़्यादा है या कंज्यूमर ज़्यादा है. तो ज़्यादा है या कम है, इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? स्टैंडिंग क्रॉप विच इज़ मेजर्ड इन फ्रेश वेट और ड्राई वेट. फ्रेश वेट मतलब फ्रेशली जो पानी वाला वेट होता है, एंड ड्राई मतलब पानी निकाल देने के बाद जो मिलता है वो वेट होता है ड्राई वेट. तो यह है स्टैंडिंग क्रॉप. कितना है अमाउंट ट्रॉफिक लेवल में, वो क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप. नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10% लॉ. जैसे कि हर एक ट्रॉफिक लेवल से हम लोग अगर जाएंगे गुजरते हुए तो क्या देखा जाएगा? द फूड एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर. ठीक है, तो ये जब एनर्जी ट्रांसफर होगा, सो देयर इज ऑलवेज अ लॉस इन द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. ये देखा गया है कि 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one trophic level to another. Okay, so this is called what? 10% law, and it was given by Lindemann in 1942. क्या होता है इसमें? Each step of food chain, in each step of food chain, when food energy is transferred from one trophic level to the next higher trophic level, some energy is lost as heat. Only 10% of the energy is transferred. Okay, only 10% of the energy is transferred from one level to the other. Low to high, that means we are going from the producers to the tertiary consumer. So when producer is trying to pass to the primary consumer, some amount of heat is lost, and what is transferred? 10% of the energy is transferred from the producer to the primary consumers. Clear? So whenever there is energy transfer from one trophic level to the higher trophic level, from the lower to higher, that is from producer to the consumers, then how much energy is lost per trophic level? This energy is lost, and 10% of the energy is transferred from one trophic level to other.
ठीक है, बहुत सारा लॉस हो जाता है एज हीट। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू दी अदर। जैसे प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक 10% एनर्जी ही जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू द इकोलॉजिकल पिरामिड्स पार्ट। हियर वी विल सी दैट हाउ द trophic levels are arranged like a pyramid. So this is the diagrammatic illustration of the connection between the trophic levels. Okay, ट्रॉफिक लेवल के साथ कैसा कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन है, इसको डायग्रामेटिकली दिखाने का नाम क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। जो डायग्राम्स हम लोग देखेंगे वो क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी भी है, एनर्जी के हिसाब से बनाएंगे, बायोमास एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमेशा बेस में क्या होगा, प्रोड्यूसर, एंड अपेक्स सबसे ऊपर क्या होगा, टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो देखते हैं व्हाट इज द पिरामिड ऑफ नंबर एंड हाउ इट लुक्स लाइक। तो पिरामिड ऑफ नंबर इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल। टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ईच ट्रॉफिक लेवल में, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, पिरामिड ऑफ नंबर। देखो यहाँ पर अगर ज़्यादा है तो ये नीचे प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इट इज ऑलवेज अपराइट स्ट्रेट स्टैंडिंग, एंड नीचे सबसे ज़्यादा नंबर, ऊपर सबसे कम नंबर वाले ऑर्गेनिजम्स है। सो दिस इज पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर के हिसाब से बनाया गया है ना। नेक्स्ट पिरामिड ऑफ बायोमास, जिसमें वेट के हिसाब से लिया गया कितना है, तो नंबर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वहाँ का वेट भी ज़्यादा होगा। तो वो भी ग्रासलैंड्स में देखो अपराइट है, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर सीधा खड़ा है, नीचे सबसे ज़्यादा वेट वाले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। सो इन्वर्टेड कहाँ पर देख रहे हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम में, जहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स का मास काफ़ी कम है, जू प्लैंक्टन्स का काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कभी कभी इन्वर्टेड सिस्टम, हाँ, जहाँ पर मास फाइटोप्लैंक्टन्स का कम दिखाई दे रहा है, जू प्लैंक्टन्स का ज़्यादा दिखाई रहे, तो हम लोग जब ड्राइंग करेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा पिरामिड ऑफ बायोमास का। देन पिरामिड ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉफिक लेवल, किसमें कितना एनर्जी है उसी के हिसाब से ड्रॉ करना होता है। इसमें इज ऑलवेज अपराइट, सीधा ही होगा, है ना, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है वो ज़्यादा उसका एनर्जी होगा, उसके बाद धीरे धीरे 10% करके वो हर एक लेवल में पहुंचाएगी। मतलब ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो हर एक लेवल में, प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक कितना जाएगा, 10%, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर कितना जाएगा, 10%, फिर टर्शियरी कंज्यूमर तक 10% ही जाएगा एनर्जी। सो दिस इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी विच इज़ ऑलवेज अपराइट। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, दीज आर व्हाट, दीज आर द डिफरेंट पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में, जैसे कि ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट व्हाट, ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट द फंक्शनल लेवल। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल लेवल, है ना। ये स्पीशीज का लेवल रिप्रेजेंट नहीं करता, फंक्शनल लेवल रिप्रेजेंट करता है। Number, biomass, energy pyramid are upright. Number, biomass, energy pyramid are upright. Producers are more in number and biomass than the herbivores, and herbivores are more in number and biomass than the carnivores. ऐसे करके आगे बढ़ता है, तो इसलिए upright है। एनर्जी लोअर ट्रॉफिक लेवल में ज़्यादा है देन द हायर वन। ये एनर्जी पिरामिड में आपने देखा है, एनर्जी लोअर लेवल्स में ज़्यादा है देन द हायर वन। ये लो है तो इससे ज़्यादा, इससे कम है ये, इससे कम है ये, इससे कम है ये। लोअर एनर्जी वाले पिरामिड में लोअर ट्रॉफिक लेवल में ज़्यादा एनर्जी है। पीरियड ऑफ बायोमास इन सी इज़ इन्वर्टेड, क्योंकि फिशेस का नंबर जो है एक्सिट हो जाएगा दैन द फाइटोप्लैंक्टन्स। अभी पॉन्ड में जो देखा आप लोगों ने कि इन्वर्टेड है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन से काफ़ी ज़्यादा है जू प्लैंक्टन। सो इसके लिए कभी कभार एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड जो पिरामिड ऑफ बायोमास दिखाया जा सकता है। ओके, सो दिस आर ऑल द पॉइंट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोलॉजिकल पिरामिड। अब कुछ लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, मतलब किस किस जगह पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। इसमें नंबर 1 पॉइंट होगा कि सेम स्पीशीज 2-3 ट्रॉफिक लेवल्स में है, ये वो कभी नहीं देखता इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये अकाउंट में नहीं लिया जाता कि एक ही स्पीशीज 2-3 ट्रॉफिक लेवल में होंगे। ओनली सिंपल फूड चेन के लिए काफ़ी अच्छा है एग्जाम्पल देना, सिंपल फूड चेन के लिए
which is almost impossible to exist in nature. फूड वेब कभी भी ये अकोमोडेट नहीं करता है. इकोलॉजिकल पिरामिड जो सिंपल फूड चेन ही है, फूड वेब के लिए कोई लास्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं देता. और इकोलॉजिकल पिरामिड्स में आप लोग देख सकते हैं सिर्फ टर्शियरी कंज्यूमर तक ही है, लेकिन हमारे इकोसिस्टम में तो सैप्रोफाइट्स भी है, डिकम्पोजर्स. सो उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, बट दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो पिरामिड्स में सिर्फ देखा जा रहा है क्या, बार बार जो पिरामिड्स दिखाए हैं उसमें प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है, लेकिन डिकम्पोजर्स के लिए जगह नहीं है. बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द यूज ऑफ व्हाट, इकोलॉजिकल पिरामिड्स. ओके, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिंपल फूड चेन को ही ये दिखाता है. फूड वेब इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता. एक स्पीशीज़ 2-3 ट्रॉफिक लेवल में इनको इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं दिखा सकते. और जो डिकम्पोजर्स है उसको भी इंक्लूड नहीं किया है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है इकोलॉजिकल पिरामिड्स का. ओके, सो आज हम लोगों ने इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में ही डिस्कस किया है. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक है दैट इज़ द सक्सेशन. ओके, इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सब. तो आज जितना तक किया है उतना तक आप लोग पढ़ लेना.